as we discussed in earlier, that here this nuclear potential, this is important. So for finding out, the main problem is to find out this nuclear potential. So we have to find out this nuclear potential. So then how many type of nuclear potential can we take? Like this, the same thing, that if we want to know the properties of nuclei and their structures and binding energies, then it is important to understand the nature of force existing between the nucleons in the nucleus. But in the simplest form, if you consider in the simplest form, two nucleon potential, it is considered as central and attractive, because the nucleus, inside the nucleus, the nucleons, they bound each other. So it is considered that the potential is central, that it is towards a center point, and obviously it will be attractive. Then some common potentials used in the calculation in the equation which I have shown you earlier. So these some common potential, these are, you must know this square well potential. This is well known potential. V of r is equal to minus V naught when r is less than or equal to r naught. Where this r naught is the relative distance between two nucleons. Like inside a nucleus, these are two nucleons. Then the relative distance, this is r. This is r. And what is r naught? R naught, we can say the range of nuclear force. So we say r naught is range of nuclear force. Okay. So then what is the shape? What is the shape of V, a square well potential? You take like this. This is R here. This is V potential. Then minus V naught. It is a bit here. It is minus V naught. And it is up to what? R naught. Up to R naught, it is minus V naught. And after that, it is 0. After that, it is 0. So this is. Then second one is exponential potential. Basically, this negative potential, negative means whenever the potential is negative, it means attractive. It means attractive. Negative means attractive. So that's why this negative term in the potential comes. If you take it positive, then obviously it is repulsive. The two particles in a positive potential, they will repel each other. Okay. Then exponential potential. Second one is exponential potential. It is simply V of r is equal to minus V naught e ki power. This is exponential term. E ki power minus r upon r naught. And the Gaussian potential. Gaussian potential, it is minus V naught e ki power minus r square upon r naught square. So if you have to plot these potentials, what you will do? You can plot these potentials. So you make a table, and in that table, and at one place you take r, and with respect to r, what is the value of? You have to find out what is the value of V of r. And let any potential in exponential potential. If r is equal to 0, when we put r is equal to 0 e ki power 0 1, it becomes minus V naught. And then when r is equal to r naught, what it becomes? You can find out at different points. You can find out r naught by 2. Then you have to find out at r naught. At r naught e ki power minus 1. So it is minus V naught upon e. And here
it is minus 2 V naught upon E, which twice at this. Oh no, sorry. This is not. E square. Yeah. Yes, it is E keep 1 by 2, but under root E. Okay, so like this. So how this potential will be? If you see this potential, then this potential will start from this, then it goes on decreasing like this, and this goes on decreasing like this. This is your exponential potential. And then Gaussian potential. Similar way, you can find out Gaussian potential and Yukawa potential. This is Yukawa potential. Then here in the Gaussian potential, we divide it by R upon R naught. This is Yukawa potential. So your first thing, you go to home and you have to plot these R potentials. इन सभी potentials को आपको plot करना है. पूरा पहले आप ये table बनाएंगे, and when we take it at infinity, when R naught tends to infinity, what it becomes? E की power infinity means almost 0. It is 0. So it is 0 at infinity. Then, so you see in these potentials, there is no term related to spin. यहाँ पे spin का कोई चक्कर नहीं है, कोई concept नहीं है. So this type के जितने भी ये potentials होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ हम उन दो nucleons के बीच की distance को consider करते हैं. So इन potentials को हम Wigner potentials. So, but what we find that in scattering experiments, it indicates that nuclear forces are short-range forces. क्योंकि short-range forces हैं, but strong है, सबसे strong force है, and partially of an exchange character. These are exchange character. And this force depends not only on R, अकेली R पे depend नहीं करती, but they also depends on spin, nuclear spin. They depends on nuclear spin, where sigma is, the spin is nuclear spin, as spin vector, it is equal to h cross sigma by 2. So what do you understand by nuclear spin? Sometimes many people have a wrong conception about spin. They think that the spin, nuclear spin is like that there is a nucleus and the nucleon is revolving around it, or nucleon is spinning like this in clockwise or anti-clockwise. No, this here in case of nucleus, this nuclear spin has no analogy in real world. Nuclear spin is totally a quantum number. It is a quantum number and it is quantum representation. So no analogy in real situation. So this, you know, these polymetrics. If you do this polymetrics, sigma x, this is equal to what? 0, 1, 1, 0, and sigma y, this is 0 minus iota, iota 0, and what is sigma z? This is 1, 0, 0, minus 1. ये आपने अपना क्वांटम में किया होगा. And what are the properties of this polymetrics? The property of polymetrics is sigma x square is equal to sigma y square is equal to sigma z square. This is equal to 1. And sigma cube, if you do, it is 3. And other is sigma x into sigma y. This is equal to minus. ये replace करोगे तो minus हो जाएगा. Sigma y into sigma x, and it is equal to iota sigma z.
is added. So these are some properties of this Pauli matrix. You can do it at your home because this is related to your quantum mechanical systems और आपने पढ़ा होगा इसको. Then the same, these all these four potentials as I earlier told that these four potentials, they only have they are purely radial potentials, and that's why these potentials are called Wigner potentials. So these potentials are called Wigner potentials, जो सिर्फ रेडियल जिसके अंदर पार्ट है, स्पिन का कोई पोर्शन नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं, and they have no exchange properties. Okay, is it clear? And yes, किसी को कुछ पूछना है? Okay, then we move to next. Then fifth potential, it was given by Majorna, so it is called Majorna potential. So Majorna potential Vm is equal to minus Vmr P of x. Here this P of x, it represents exchange of space coordinates between two nucleons. Like that this potential concerns with the exchange of space coordinates, where space exchange operator P of x, if we apply it on a wave function psi r1 r2, it exchanges r1 by r2 and r2 by r1. This is like we have these two nucleons, 1 and 2. If here this what it do, it makes 2 1 and 1 2. So it shows exchange. That if we take psi r1 r2, then it converts, if we apply this exchange operator P of x, it converts psi r2 r1. So r1 is replaced by r2 and r2 is replaced by r1. So this way it is exchange. Then this then next is Bartlett potential. So this VB, it is equal to minus VB R and P sigma. This is spin exchange. This is basically exchange of spin. हम सिर्फ spin के अकेले की बात करते हैं कि दोनों के अंदर spin भी exchange हो जाती है. So this potential concerned with the exchange of spin coordinates, and this P of sigma, this is equal to 1 by 2 1 plus sigma 1 dot sigma 2, where sigma 1 sigma 2 are, these are Pauli matrices, sigma 1 sigma 2. Then P sigma, if we apply it on a spin part, then the spins are exchanged, sigma 1 by sigma 2 and sigma 2 by sigma 1. These are exchanged. Then the spin exchange operator acting on two nucleon spin singlet state. What do you mean by spin singlet state? There are two nucleons. If they have, we have two types of spin, up spin and down spin. We have two, up spin or down spin. If what can be the combination of these two? The combination is one have up spin, other have down spin, and other can be both have up spin. Both have up spin. So this is the combination. This is the combination of their spin. When we have one up spin and one down spin, what it means? It means spin is zero. तो इस state को हम क्या बोलते हैं? Singlet state. So spin singlet state, spin, this is called chi naught. It is spin antisymmetric state. And change of sign with this page P sigma chi naught के ऊपर हम लगाएंगे तो ये एंटीसिमेट्रिक है. एंटीसिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? माइनस chi naught. एंड दिस ये जो है यदि इसके अंदर हम एक्सचेंज करेंगे, इस स्पिन को इधर लेके आए, इस स्पिन को इधर लेके जाए, तो दोनों क्या है? अप स्पिन है, दोनों अप स्पिन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो दिस इज कॉल्ड दिस इनमें स्पिन को हम ऐड करेंगे तो हाफ स्पिन इसका प्लस हाफ इसका, तो कितना हो जाएगा? 1. यहाँ पे ऐड करेंगे तो हाफ इसका माइनस हाफ इसका 0. तो यहाँ पे यदि हम एक्सचेंज करेंगे तो ये इस तरफ पहुंचेगा और ये इस तरफ पहुंचेगा, तो रिवर्स हो जाएगी, इसलिए माइनस chi naught. इसके अंदर यदि इसको इधर करें, इसको इधर करें, सेम रहेगा, तो ये स्टेट क्या होगी? सिमेट्रिकल स्टेट.
This is symmetrical state. So same is here, that when acting on the spin triplet state, chi1, the spin symmetric state, this is called spin symmetric state. P sigma chi1 is equal to chi1. और यदि इसकी आइजन वैल्यू हमें निकालनी हो तो आइजन वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? यहां से P sigma is equal to 1/2 1 plus sigma 1 dot sigma 2. ये आपको पता है सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, सिग्मा 2 जो मैट्रिक्स है, ये आपने क्वांटम में किया होगा, इसकी आइजन वैल्यू होती है फॉर सिमेट्रिक इट इज 1 फॉर सिमेट्रिक और यू कैन से ट्रिपलेट, एंड इट इज -3 फॉर एंटीसिमेट्रिक और सिंगलेट स्टेट. तो इसको आप करोगे तो यहाँ पुट करो इनकी वैल्यू. आप देखो यहां से भी आपका, जैसे हमने P सिग्मा इंटू काई नोट इज इक्वल टू, हमने माइनस काई नोट लिखा है, ये कैसे आया? ये यहां से भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. -3 को पुट करेंगे, -3 तो क्या जाए 1 -3 -2, 2 से 2 कैंसिल, -1, ये -1 आ गया. दिस इज -1. Okay, and when you put 1 plus 1 2, 2 1 cancel, so +1 आ गया. तो इसके लिए आपको यहाँ से आप ये देख भी सकते हैं, ऐसा ही होगा शायद. यस, ये है स्पिन सिंगलेट स्पिन ट्रिपलेट स्टेट. सो इसीलिए ये माइनस, यदि सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 अकेला इसके ऊपर लगाएंगे काई पे तो इट इज -3 काई नॉट, और अकेला इस पे लगाएंगे काई 1 पे सिमेट्रिक स्टेट पे तो इट इज इक्वल टू काई 1. Okay, so this is about your different potentials. Then comes Heisenberg potential. Heisenberg potential V of R, this is equal to minus VHR P of H. अब इसके अंदर क्या है? अभी एक्सचेंज बोथ, अभी हम दोनों का एक्सचेंज करेंगे. अभी तक तो हमने क्या किया, एक के अंदर हमने स्पेस को एक्सचेंज किया और एक के अंदर हमने स्पिन को एक्सचेंज किया. हाइजेनबर्ग ने इन दोनों को इकट्ठा एक्सचेंज किया इन्होंने. सो इसको एक्सचेंज किया. गो टू नेक्स्ट. That also according to Pauli's exclusion principle, the two nucleon wave function is antisymmetric with respect to exchange of space, spin and isotropic and spin coordinates of two particles. और Pauli's exclusion principle क्या कहता है? It says that no two fermions can have same set of all quantum numbers. So अभी तक आपने तो no two electrons पढ़ा होगा, तो एग्जैक्ट जो Pauli's exclusion principle है वो है no two fermions can have same set of all quantum numbers. ओके, सो जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन के केस में करते थे, तो यदि एक हम न्यूक्लियस की बात करते हैं और फिर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे? इन इलेक्ट्रॉन्स के बाकी सब n सेम हो जाता है, n इक्वल टू 1 हो जाता है, n सेम हो जाता है, 0 हो जाता है. तो हम कहाँ पे चेंज करते थे? m के अंदर जाके चेंज करते थे. एक को कहते थे प्लस हाफ हो गया, एक को कहते थे माइनस हाफ हो गया. तो ये स्पिन, इनकी हम स्पिन यहाँ पे ये भी क्या है? दीज ऑल आर क्वांटम नंबर्स, दीज आर क्वांटम. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ स्पिन हियर आल्सो. Spin is a quantum number. It is used to differentiate, that to satisfy the Pauli's exclusion principle, that no two fermions can have same set of all quantum numbers. That's why these two electrons, this electron and this electron, they have anti-symmetric. They have their wave function is anti-symmetric. इनका wave function symmetric नहीं होगा. Symmetric wave function किसका होता है? Bosons का. Bosons can have symmetric wave functions, but fermions cannot have symmetric wave function.
they should have anti-symmetric wave function. तो anti-symmetric कहाँ आई? Symmetry आई spin quantum number के अंदर. So this comes here. So if it is so, then pH and in p tau this is equal to -1. Heisenberg coefficient and p tau. What is pH? pH is px. हमने px को लिया है क्योंकि हमने क्या एक्सचेंज ऑफ हम रेडियल एक्सचेंज भी करेंगे, पार्टिकल एक्सचेंज भी करेंगे और स्पिन को भी एक्सचेंज करेंगे. px into p psi, this is equal to minus p of tau. That's why this is -1. And this is equal to -half 1 plus tau 1 dot tau 2. This. So if we apply this Heisenberg operator on a wave function, psi r1 r2 sigma 1 sigma 2, what it make? It exchange the whole thing. Means r1 is exchanged by r2, particle is exchanged, r2 by r1, and sigma 1 by sigma 2, and sigma 2 by sigma 1. This is like. So in summary, if you do, in summary, the two nucleon interaction potential can be written as, यदि हम two nucleon interaction potential को हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? V of R, this is equal to minus हमने सभी का बाहर ले लिया, minus Wigner potential. W is Wigner potential. Wigner potential means हम स्क्वायर गॉसियन उन सब में से किसी एक को लेंगे, हम सभी को नहीं लेंगे. इसके अंदर हमारे जो 4 पोटेंशियल थे, उन 4 पोटेंशियल में से एनी ऑफ 4 लेंगे. एनी ऑफ 4 मींस या तो हम स्क्वायर वेल ले लेंगे, या हम गॉसियन ले लेंगे, या हम उसके अंदर बार्टलेट लेंगे. तो हम सिर्फ उनको लेंगे, बाकी को हम नहीं लेंगे. तो यहां हमारे ये 4 पोटेंशियल में लिए, या युकावा को ले लेंगे. सो अब इसके एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे तो उनमें से एक लेंगे, तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा लिख दिया V of W. और हमने क्या लेना है? हमें एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल भी लेना है. ये आ गया मजोरना में. बार्टलेट के अंदर क्या एक्सचेंज ऑफ स्पिन को भी रखना है, और इन दोनों की भी एक्सचेंज हो सकती है. तो हमने हाइजेनबर्ग के अंदर क्या लिया? -V of H, ये एक्सचेंज भी लिया. तो ये हुआ. यदि हमने जैसे यहाँ पे हमने क्या है, फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल, यदि हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लिया तो हम आर, ये बात कहाँ होगी? स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर V नोट कब रहेगा? V नोट जैसे हमने W लिया, V नोट कब? तो माइनस V नोट बाहर आएगा. V नोट बाहर आएगा, ये विग्नर का W, एंड M हमारा क्या है? ये W और M क्या चीजें हैं? M हमारा है जो हमने यहाँ पे लिया. पीछे जाओ बैक पेज पे. जैसे हमारा ये V of M है, तो हमने जो M लिया, ये M हमारा यहां से आ जाएगा. हमने V नोट को बाहर लिया, इट इज Vm अपॉन V नोट. सो M इज इक्वल टू V नोट अपॉन V नोट को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे. सो M ऐसे ही B और ऐसे ही H. सो ये सारे हो गए. अब हम करते क्या है? दिस W, M, B एंड H आर कोफिशिएंट्स given relative to contribution of various potentials. अब हम करते क्या? हमारा काम क्या रहता है? जो हम रिसर्च करते हैं, PhD आगे बच्चे करते हैं, तो हम इन डिफरेंट पोटेंशियल्स की, हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता होती है. हम एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, हम ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के अंदर करेंगे. तो हम एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट थिंग्स को हम निकाल लेते हैं. जैसे स्पिन को निकाल लेते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी को निकाल लेते हैं, फिर ये पोटेंशियल लेते हैं VR, और मॉडलिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर. उस मॉडलिंग के अंदर इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालते हैं. इन कोफिशिएंट्स की इनिशियल कुछ वैल्यू दे देते हैं, और फिर सिमुलेशन करते हैं. सिमुलेशन से हम इन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकालते हैं. ये हमारा काम होता है किसी भी उसके अंदर सेट करने के लिए कि इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर किस कोफिशिएंट की क्या वैल्यू आई है. तो ये डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग मॉडलिंग की जाती है. तो ये वहां पे काम आएगा आपके, ये वाला टोटल पोटेंशियल की एक पोटेंशियल क्या होगा. सो दिस पोटेंशियल इज स्टिल, ये क्या है? पोटेंशियल सेंट्रल है, माइनस साइन है, मींस अट्रैक्टिव एक पॉइंट की तरफ है, एंड इट इंडिकेट्स नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. द एक्सचेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज एविडेंट फ्रॉम बोथ. ये जो न्यूक्लियर फोर्स का जो है कि न्यूक्लियर फोर्स का एक्सचेंज नेचर है, ये एक दूसरे का एक्सचेंज करती है. इट इज बाय प्रूव्ड बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट.
वो कैसे हम बताएंगे आपको। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मान लो हमने एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की, हमने यहाँ पे एक प्रोटॉन को ले लिया, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया। यदि हमने सेम स्पिन बम्बार्ड किया न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, इसको इसके साथ बम्बार्ड किया, तो डिफरेंट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। और यदि हमने ऑपोजिट को किया तो डिफरेंट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन क्या बताता है कि ड्यूट्रॉन के अंदर न्यूट्रॉन जब अप स्पिन वाला होगा और प्रोटॉन अप स्पिन वाला होगा, तभी ये न्यूक्लियस बन पाता है ड्यूट्रॉन का। यदि ये ऑपोजिट स्पिन के होंगे तो न्यूक्लियस नहीं बन पाता। जैसे ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन, अभी हम सबसे सिंपलेस्ट क्या है जिसके अंदर दो ही है, वो ड्यूट्रॉन है। तो आउट ऑफ 3 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ 2 न्यूक्लियन सिस्टम, हम 2 न्यूक्लियन सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं। डाई न्यूट्रॉन, डाई न्यूट्रॉन क्या कि हमने 2 न्यूट्रॉन ले लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और एक हमारा डाई प्रोटॉन कि 2 प्रोटॉन बने, प्रोटॉन प्रोटॉन, और एक हमारा ड्यूट्रॉन है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ नेचर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। नेचर में कोई डाई न्यूट्रॉन सिस्टम नहीं है, कोई प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम नहीं है। नेचर के अंदर सिर्फ एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। सो ये सिर्फ ड्यूट्रॉन स्टेबल है, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं है। और ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी 2.226 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट with an accuracy of 0.003 MeV. This is the and the other experimental measured properties, ड्यूट्रॉन की हमने और क्या क्या एक्सपेरिमेंटली मेजर किए हैं? पहले हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किए हैं, फिर हम इसको एक थ्योरी देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट इतना। बट आप यहाँ पे ये देखोगे, यदि हम प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होता है। एंड यदि हम बात करें न्यूट्रॉन की तो इसका नेगेटिव होता है -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। और इन दोनों को यदि आप करोगे, आपस में जोड़ोगे, ऐड करोगे, यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेंगे तो ये एडिशन होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एनपी सिस्टम का क्या हो जाएगा? यदि आप इसको करो तो इट इज 8 एंड इट इज 8 पॉइंट, सो 0 पॉइंट अराउंड आपका क्या आ गया 88 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। यदि ये सिंपल आपस में जुड़े हुए होते, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली निकाला वो क्या है 0.85। ये जो डिफरेंस है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये मैग्नेटिक मोमेंट हाउएवर डिफरेंस बहुत कम है, बट ये डिफरेंस क्या बताता है? ये डिफरेंस ये बताता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज हो रही है, एक्सचेंज करंट है, इसको मिजोनिक करंट बोलते हैं। जो हमारा ऑलमोस्ट एक डिफरेंस यहाँ पे आया, जो ऑलमोस्ट एक डिफरेंस इसमें और इसमें भी आप देखोगे 0.023 के अराउंड न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के अराउंड जो एक डिफरेंस आया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, और थ्योरेटिकली यदि हम करते हैं तो उसमें ये इस मिजोनिक करंट के कारण है। मिजोन थ्योरी जो दी गई न्यूक्लियर फोर्स की, मिजोन थ्योरी क्या दी गई? उसमें ये है कि भाई जो न्यूट्रॉन है वो एक मिजोन को थ्रो करता है प्रोटॉन की तरफ, फिर प्रोटॉन एक मिजोन को थ्रो करता है न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आपस में एक एक्सचेंज है एक मिजोन का। तो ये थ्योरी किसके कारण है? मिजोन के कारण फोर्स एस्टेब्लिश है। और मिजोन, क्योंकि मिजोन जो होते हैं वो भी चार्ज पार्टिकल है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज होंगे तो वहां पे करंट डेवलप होगा, एंड ड्यू टू करंट देयर विल बी ए मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट जो कंपनसेट हुआ है, एक्स्ट्रा में कंपनसेट हुआ है, दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज। So the difference, this minor difference between magnetic moments
of experimental magnetic moment and theoretical magnetic moment, this indicates that there is an exchange force, there is an exchange between two nucleons. This is an evidence for that. So one nuclear magnetron, ये याद रखो बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चंस नेट वेट में आपके कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं कि एक NM न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर है, EH क्रॉस अपॉन 2MP. दिस MP इज मास ऑफ प्रोटॉन. जो बोहर मैग्नेट्रॉन है उसके अंदर क्या आता है, EH क्रॉस mass of electron. Mass of electrons, sir. यस यस, देयर इज हेयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास. और इसके अंदर तो कौन सा बड़ा है, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन बड़ा है या बोहर मैग्नेट्रॉन? Bohr magnetron, sir. तो यदि हम एक क्वेश्चन पूछें यहाँ पे, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन and Bohr magnetron is option A, A हम कहते हैं 1, B mass of proton by mass of electron, C mass of electron by mass of proton, D 2. Which one is correct? C. C option, sir. C, sir. C, sir. C, sir. C, तो sir. कौन सा बड़ा है, बोहर मैग्नेट्रॉन बड़ा है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन? Bohr magnetron. Bohr, sir. ऑब्वियसली बोहर मैग्नेट्रॉन मच ग्रेटर देन, क्योंकि ये कितने में आता है, इसको लेंगे तो ये तो हमारा आएगा 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और ये हमारा कितना 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27. तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, इसको ले तो ये 30 के करीब हो गया, तो ऑलमोस्ट 1000. 10 की पावर माइनस 3 times almost. Okay, so in this way you can find out. Then next is electric quadrupole moment. Electric quadrupole moment, it is 2.82 into 10 की power minus 27 centimeter square. This electric, sometimes questions are asked like this. The electric quadrupole moment is a measure of option A, electric field, option B, electric charge, option C, shape deformation, option D, momentum, electric momentum. Which one is correct? C, sir. C option, sir. C, sir. Option C, sir. C. और किसी का कुछ और? B, sir. B. Charge, sir. और कुछ? B और C के अलावा?
apart from B or C? The correct option is C. इसमें वर्ड इलेक्ट्रिक जरूर है, बट इसका इलेक्ट्रिक उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी शेप डिफॉर्मेशन बताता है। यदि हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट किसी भी उसका जीरो होगा, इट मींस वो स्फेरिकल शेप का होगा। यदि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो से अलग होगा तो उसका मीनिंग है कि दैट इज अवे फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप, उससे अलग होगा। तो एक तो मैं जो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं बेटा, ये साथ के साथ ये लिख लिया करो, ठीक है। एंड दूसरा, जैसे कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, किसमें मेजर किया जाता है? इसकी तो यूनिट एरिया वाई यूनिट है। यदि आप देखोगे यहां हमने कहा दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर और फर्मी स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ एरिया। तो ये एरिया की, तो ये एरिया मींस ये सरफेस की डिफॉर्मेशंस को बताता है कि सरफेस कैसी है और सरफेस एरिया कैसा है। यदि स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो सर। यदि स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं है तो नॉन जीरो होगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? तो यस सर। यदि हमारा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट यहाँ पे क्या है बहुत स्मॉल, बट फिर भी क्या है? नॉन जीरो है। व्हाट इट मींस? ये क्या बताता है? यदि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो है तो इसका मीनिंग क्या है? इट मींस द ड्यूट्रॉन डजंट हैव कंप्लीट स्फेरिकल शेप। यदि ड्यूट्रॉन की कंप्लीट स्फेरिकल शेप नहीं है तो वो हमारा L इज इक्वल टू जीरो पे नहीं हो सकता। हमारा स्फेरिकल शेप किसकी होती है? L इज इक्वल टू जीरो पे। उसके अलावा तो क्या होती है? डिफॉर्मेशंस होती है। देन स्पिन इसकी क्या है? स्पिन इज इन द यूनिट ऑफ एच क्रॉस। तो स्पिन क्या है? 1 एच क्रॉस। तो स्पिन S इज इक्वल टू एच क्रॉस है ड्यूट्रॉन की। क्यों 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 है? बिकॉज ये दोनों आपके क्या हैं? अप स्पिन के अंदर है।